Welcome to this lecture on nuclear physics. Today we will discuss binding energy curve. आज हम binding energy curve पढ़ेंगे. हम लोगों ने कल binding energy पढ़ा, हम लोगों ने कल mass defect भी पढ़ा और हम लोगों ने कल binding energy per nucleon भी पढ़ा. मैंने आपको बताया था binding energy per nucleon जो है that is the energy required to extract one nucleon from the nucleus. ठीक है ना? मैंने ये भी बताया था कि greater the binding energy per nucleon, greater will be the stability of the atomic nucleus. आज हम पढ़ने जा रहे हैं binding energy curve. Binding energy curve जो है, it is basically a graph which shows how the binding energy per nucleon, ये है binding energy per nucleon varies with mass number. एक ग्राफ किस के दरमियान, बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन और मास नंबर के दरमियान जो ग्राफ है, उसी ग्राफ को हम कहते हैं क्या, बाइंडिंग एनर्जी कर्व. सो इट्स अ ग्राफ व्हिच शोज हाउ द बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन वेरीज विद द मास नंबर. ठीक है ना? द ग्राफ, दिस बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन हियर इज प्लॉटेड अगेन एज द मास नंबर A. If we see this graph, for light nuclei, for example, we have a deuteron here, H12, we have a tritium here, H13, ठीक है ना? इनकी जो बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन इस साइड में है, वर्टिकल एक्सिस में, that's very small. For light nuclei means H12 and H13, that is deuteron, deuterium and tritium. The binding energy per nucleon, जो binding energy per nucleon का value है, that is very small. That value is very small, indicating that these nuclei, they are less stable. They are indicating that these nucleon for these light nuclei is very small. It indicates that these nuclei are less stable. आप देखो, initially ये जो बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन का ग्राफ है, ये देखो, ये ग्राफ है, इट इंक्रीजेस रैपिड इंक्रीज हो रहा है. सीधे जो लाइन है जो ऊपर जा रही है, इनिशियली द बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन इंक्रीजेस रैपिडली. सीधे जो आपका ग्राफ है, ये सीधे ऊपर जा रहा है. दिस इज अ रैपिड इंक्रीज. ठीक है ना? बिटवीन मास नंबर्स 4 to 20, जब मास नंबर होगा किस के दरमियान, 4 to 20. फॉर एग्जाम्पल यहां पर हीलियम है, इसका मास नंबर 4 है. कार्बन है, इसका मास नंबर 12 है. ऑक्सीजन है, इसका मास नंबर 16 है. ठीक है ना? फॉर मास नंबर्स 4 to 20, इस ग्राफ में आप देखो वेल डिफाइंड पीक्स होकर, मैक्सिमा एंड मिनिमा होकर. देखो He4 पे पीक है, C12 पे, कार्बन 12 पे पीक है, ऑक्सीजन 16 पे पीक है. तो जब यहाँ He4 पे पीक आई, उसके बाद ये कर्व जो आपके है, ये नीचे चली गई है. फॉर लिथियम, ठीक है ना? उसके बाद नाइट्रोजन, इसके लिए भी नीचे चली गई है. उसके बाद ऑक्सीजन, इसके लिए भी नीचे चली गई है ना? तो हम लिखेंगे यहाँ पर, क्या बोलेंगे हम, कि बिटवीन मास नंबर 4 to 20, what happens, well defined maxima and minima occur on the curve, as shown by the cyclic reoccurrence of the peaks on the curve. जो मैक्सिमा है, मैक्सिमा किस के लिए ओकर हो रहा है, हीलियम, कार्बन 12, ऑक्सीजन 16. For these nuclei, there occurs maxima, means that the binding energy per nucleon for these nuclei is very large as compared to their neighbors. इनका neighbor क्या है, लिथियम है, नाइट्रोजन है, ऑक्सीजन है. It means that these nuclei are more stable, क्योंकि इनकी binding energy per nucleon जो है, that is greater than their nearest neighbors. Therefore, these nuclei are more stable than their neighbors. The minima occurs for lithium, nitrogen, oxygen. ठीक है ना? The minima occurs for lithium 6, nitrogen 14, oxygen 18. ठीक है ना? Minima occurs. It means that the binding energy per nucleon of these lithium, nitrogen and oxygen, it is very small. Means that since their binding energy per nucleon is small, it means that these nuclei are less stable as compared to their nearest neighbors.
ठीक है. Now beyond A is equal to 20, this binding energy per nucleon increases gradually. There is a gradual increase. देखो increase हो रहा till it attains a value of, यहां पर जो हमारा value होगा, till it attains a value of 8.8 million electron volt. 8.8 million electron volt for iron. Beyond A is equal to 20, देखो यहां पर क्या मास नंबर 16, ये देखो मास नंबर यहां 16 है यहां, ठीक है ना. Beyond A is equal to 20, ये मानो आप 20 है, ठीक है ना. Beyond A is equal to 20, ये जो आपकी कर्व है, ये जो आपकी बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन है, इट इंक्रीजेस ग्रेजुअली इंक्रीज हो रही है till it attains a maximum value of what? 8.8 billion electron volt for iron. It means that iron is the most stable element in the periodic table. Why is iron most stable element in the periodic table? Because the binding energy per nucleon for iron is maximum, and that binding energy per nucleon for iron is maximum, and the value of that binding energy per nucleon is at 8.8 million electron volt. ठीक है ना. Now if the mass number is further increased, you see this binding energy curve starts, this graph, the binding energy per nucleon, it starts decreasing as the curve goes downwards, ठीक है ना, till it reaches what? Till it attains a value of what? Till it attains a value of, यहां पर मैं लिखूंगा value 7.5 million electron volt for uranum 238. यानी अगर हम A is equal to 56, इससे फिर इसके बाद जो हमारी होगी ये बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन, अगर हम इसको इंक्रीज करेंगे, अगर हम मास नंबर को हम इंक्रीज करेंगे, जो बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन है वो डिक्रीज हो रही है, ठीक है ना, till it drops to what? 7.5 million electron volt for what? Uranum 238, ठीक है ना. अगर आप ग्राफ पे देखेंगे, between A is equal to 40 to A is equal to 120, ये देखो यहां पर 100 है, यहां पर 127 है, ये 120 है. Between mass numbers ranging from A is equal to 40 to A is equal to 20, ठीक है ना. जो इस दौरान इस मास नंबर के रेंज में जो न्यूक्लिया आएंगे, उनकी बाइंडिंग एनर्जी जो है that is close to the maximum value. ये देखो यहां पर this is close to 8.8 billion electron volt. इसका मतलब है इस रेंज में, यानी between 40 to 120, between mass number 40 to 120, जो आपके न्यूक्लिया आएंगे, चूंकि their binding energy is close to that of the maximum value, therefore इस रेंज में जितने भी न्यूक्लिया आएंगे वो होंगे that will be stable and non-radioactive. Beyond 120 देखो जो कर्व है वो ग्रेजुअली शार्प डिक्रीज दिखा रही है. बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन जो है that decreases gradually till it attains a minimum value of what? 7.5 million electron volt for uranum 238. It means that जिन न्यूक्लियाई का मास नंबर बहुत ज्यादा होगा, वो न्यूक्लियाई जो होंगे वो होंगे अनस्टेबल, ठीक है ना, अनस्टेबल एंड हेंस रेडियोएक्टिव. जब वो रेडियोएक्टिव होंगे, therefore they will decay, they will disintegrate in order to achieve the stability, ठीक है ना. These were the silent features of this binding energy curve. Now importance of binding energy curve, ये क्या, इसकी इंपॉर्टेंस क्या है? देखो बच्चों, जो हैवी न्यूक्लियाई है, यहां देखो, इनकी बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन जो है that is small as compared to middle mass nuclei. Middle mass iron 56, MO 100, ठीक है ना. मिडिल मास से जो हैवी न्यूक्लियाई है, इनकी जो बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन है that is small as compared to middle mass nuclei. It means that the nuclei with large mass numbers, ठीक है ना, यानी heavy elements, they are less stable as compared to the middle mass nuclei, ठीक है ना. Now as a result यहां पर क्या होता है, ये जो न्यूक्लिया the nuclei of these heavy elements, चूंकि इनकी बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन जो है वो मिडिल मास न्यूक्लिया से कम है, therefore the nuclei of these heavy elements decay, therefore the nuclei of these heavy elements split into what nuclei? Into middle mass nuclei. लिहाजा जो ये heavy elements है,
ये heavy elements in order to achieve the stability, these heavy elements decay, ये टूट जाते हैं into what? They decay into middle mass nuclei, क्योंकि middle mass nuclei की binding energy per nucleon जो है वो ज्यादा है, ठीक है ना। Now यहां देखो, जब ये heavy element decay हो गया, इसकी डिके होने से इसकी बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन जो है वो इंक्रीज हो गई, क्योंकि ये किस रेंज में आया, फिर ये हैवी एलिमेंट जो है ये टूट गया इनटू मिडिल मास न्यूक्लियाई, ठीक है ना, इनटू मिडिल मास न्यूक्लियाई। क्यों टूट गया? इन ऑर्डर टू अचीव व्हाट? स्टेबिलिटी। लेकिन टूट जाने से क्या हुआ यहां पर? टूट जाने से क्या हुआ? टूट जाने से क्या हुआ यहां पर? नाउ जब ये हैवी एलिमेंट टूट गया, when it separates into middle mass nuclei, इससे क्या होता है, जो यहां पर बाइंडिंग एनर्जी कम थी, बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन कम है, और जब ये मिडिल मास न्यूक्लियर में टूट गया तो बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन जो वो इंक्रीज हो गया। इसका मतलब ये एनर्जी कहां से आया? हाउ दिस बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन इंक्रीजेस? व्हाट हैपेंस व्हेन दिस हैवी एलिमेंट, द न्यूक्लियर ऑफ हैवी एलिमेंट, व्हेन दिस स्प्लिट्स, जब ये स्प्लिट हो गया तो क्या होगा? एनर्जी रिलीज हो गई, एनर्जी रिलीज हो गई। जब एनर्जी रिलीज हो गई, उसी एनर्जी रिलीज होने से इसकी जो बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन है वो इंक्रीज हो गई, ठीक है ना। दिस इज व्हाट हैपेंस इन न्यूक्लियर फ्यूजन, इन न्यूक्लियर फिशन। न्यूक्लियर फिशन में भी हैवी एलिमेंट जो है वो टूट जाता है इनटू मिडिल मास न्यूक्लियर विद द रिलीज ऑफ लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी। एनर्जी क्यों रिलीज होगी वो तो आपको पता है कि दैट इज बिकॉज ऑफ मास डिफेक्ट, ठीक है ना। जब वो एनर्जी इंक्रीज हो गई, एज अ रिजल्ट व्हाट हैपेंस? द बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियर इंक्रीजेस। नंबर 2, जो ये लाइट न्यूक्लियर है, लाइट न्यूक्लियर, इनकी बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन जो है दैट इज वेरी स्मॉल। देयरफॉर these light nuclei are less stable. In order to achieve the stability, these light nuclei they combine with each other. जब ये combine हो गए in order to form a heavy nuclei. ये लाइट न्यूक्लियर जो है, इनका जो बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन है उसका वैल्यू बहुत कम है। इसका मतलब है ये लाइट न्यूक्लियर जो है ये भी लेस स्टेबल है। अब इनको स्टेबल होने के लिए, हैवी न्यूक्लियस को स्टेबल होने के लिए ब्रेक होना था, इनको स्टेबल होने के लिए कंबाइन करना है। जब ये कंबाइन करेंगे दे विल गेट कन्वर्टेड इनटू मिडिल मास न्यूक्लियर, ठीक है ना। जब ये कन्वर्ट हो गए इनटू मिडिल मास न्यूक्लियर, ठीक है ना, व्हाट हैपेंस? बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियर इंक्रीजेस, ठीक है ना। बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियर कैसे इंक्रीज होगी? इसका मतलब है जब ये लाइट न्यूक्लियर आपस में कंबाइन करेंगे एनर्जी रिलीज होती है। दिस इज व्हाट हैपेंस इन न्यूक्लियर फ्यूजन। Hence this binding energy curve, it explains the phenomena of nuclear fission and nuclear fusion. This completes this important question. मैंने बताया जो हमारे पास heavy elements है, for example हम यूरेनियम 238 लेंगे 92, इसका जो एटॉमिक नंबर है दैट इज 92। इसका मतलब है जो यूरेनियम 237 का जो न्यूक्लियस है दैट कंटेन्स 92 प्रोटॉन्स। उसमें आपको क्या है? दैट कंटेन्स व्हाट? 92 प्रोटॉन्स। उस न्यूक्लियस में 92 प्रोटॉन्स है। इसका मतलब है जो ये यूरेनियम 238 का जो न्यूक्लियस होगा दैट विल बी लार्ज इन साइज, दैट विल बी लार्ज इन साइज। ड्यू टू लार्ज साइज व्हाट हैपेंस? इसमें जो कि बहुत सारे आपके प्रोटॉन्स हैं, ठीक है ना, देयर विल बी लार्ज रिपल्शन। ड्यू टू दिस लार्ज रिपल्शन these nuclei of these heavy elements, they are unstable, लिहाजा जब यहां प्रोटॉन है there will be a large repulsion, what happens? Therefore this nucleus decays. In order to reduce its size, this nucleus decays, ठीक है ना। decay क्या होता है? It's a spontaneous decay. Spontaneous means by itself, without any external agency. That phenomena according to which the nuclei of the heavy elements undergo a spontaneous disintegration with the emission of, what happens? With the emission of some kind of invisible radiations. That phenomena is called as radioactivity. What is the radioactivity? Radioactivity is a spontaneous disintegration of the nuclei of heavy elements with the emission of invisible radiations. ठीक है ना? तो invisible radiations
कैसे वहां निकलते हैं? क्योंकि जब इसका साइज जो है वो रिड्यूस हो रहा है। जब ये डीके एलिमेंट होता है, इसका साइज जो होता है वो रिड्यूस होता है। इसका मतलब है some mass comes out in the form of matter or in the form of radiation. ठीक है ना? That phenomena is called as radioactivity. Spontaneous means by itself. Well, since it's a spontaneous process, therefore this radioactivity, it is unaffected by the presence of what? Yeah, it is unaffected by the external factors like temperature and pressure. ठीक है ना? तो रेडियोएक्टिविटी क्यों होकर होती है? क्योंकि जो हैवी एलिमेंट्स होते हैं, हैवी एलिमेंट्स में नंबर ऑफ प्रोटॉन्स बहुत ज्यादा होते हैं। एज ए रिजल्ट देयर occurs a large repulsion, ठीक है ना? लार्ज रिपल्शन। और आपको पता है जो न्यूक्लियर फोर्स है वो शॉर्ट रेंज फोर्स है। इन न्यूक्लियर में जो न्यूक्लियर फोर्स है वो थोड़ा डिक्रीज हो जाएगा, लेकिन रिपल्शन जो है वो बहुत ज्यादा हो जाएगी। जब रिपल्शन ज्यादा होगी, व्हाट हैपेंस? दिस हैवी न्यूक्लियस इट बिकम्स अनस्टेबल। देयरफॉर सेकेंडली, जो ये हैवी एलिमेंट है, इसकी बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन जो है वो बहुत शुमार होती है, वो बहुत कम होती है एज कंपेयर टू द मिडल मास न्यूक्लियर। Therefore, in order to achieve stability, what happens? This nuclei of these heavy elements, they disintegrate, they decay, ठीक है ना? When they decay, what happens? Some kind of invisible radiations are emitted from the nucleus. That phenomena is called as what? Radioactivity, ठीक है ना? Now, three kinds of radiations are emitted from the radioactive nucleus during its decay. Number one, alpha particles. They are doubly ionized helium atoms. आपको पता है? They are doubly ionized helium atoms. Means helium atoms from which the two electrons have been removed. ठीक है ना? Containing 2 protons and 2 neutrons. हाँ, जब अल्फा पार्टिकल न्यूक्लियस से बाहर निकलेगा तो आपको इस न्यूक्लियस का जो साइज है वो डिक्रीज हो जाएगा। क्योंकि आपको पता है अल्फा पार्टिकल इज He24। इसका मतलब है यहां पर अगर यूरेनियम 235 में अल्फा पार्टिकल बाहर आएगा तो इसका मास नंबर जो है दैट विल डिक्रीज बाय 4, है ना? तो इसका मास नंबर रहेगा, जो इसमें एलिमेंट निकलेगा उसका मास नंबर रहेगा 234 और उसका एटॉमिक नंबर कितना रहेगा? 90। क्योंकि जब इसका अल्फा डिके हो जाएगी वहां पर ये जो अल्फा पार्टिकल जो बाहर आएगा, अल्फा पार्टिकल का जो मास है दैट इज 4, उसका जो चार्ज नंबर है, एटॉमिक नंबर है दैट इज 2, ठीक है ना? चार्ज नंबर जो उसका है दैट्स 2। इसका मतलब है एक अल्फा पार्टिकल निकलने से इसका मास जो है वो डिक्रीज हो जाएगा बाय 4 यूनिट्स और इसका जो एटॉमिक नंबर है दैट विल गेट डिक्रीज बाय 2 यूनिट्स। उस सूरत में इस न्यूक्लियस का जो साइज है वो क्या होगा? शाबाश, वो डिक्रीज होगा। नंबर सेकंड, बीटा पार्टिकल और बीटा रेज। बीटा रेज जो और बीटा पार्टिकल्स जो होते हैं, these are the fast moving electrons which are of nuclear origin. That means that electron is created in the nucleus. क्योंकि आपको पता है न्यूक्लियस में इलेक्ट्रॉन्स नहीं है, लेकिन जिस न्यूक्लियस में नंबर ऑफ प्रोटॉन्स या नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स ज्यादा होते हैं देन रिक्वायर्ड फॉर स्टेबिलिटी। किसी न्यूक्लियस में प्रोटॉन ज्यादा होते हैं देन रिक्वायर्ड फॉर स्टेबिलिटी। किसी न्यूक्लियस में न्यूट्रॉन ज्यादा होते हैं देन रिक्वायर्ड फॉर स्टेबिलिटी। उन न्यूक्लियर में क्या होता है, जो ये न्यूट्रॉन है, फॉर एग्जांपल किसी न्यूक्लियस में प्रोटॉन ज्यादा है तो प्रोटॉन जो है ये कन्वर्ट होगा इनटू न्यूट्रॉन। अब प्रोटॉन की चार्ज है पॉजिटिव, न्यूट्रॉन की चार्ज क्या है? न्यूट्रल। तो यहां पर कोई पॉजिटिव चार्ज होनी चाहिए। तो यहां पर एक पार्टिकल न्यूक्लियस में ऑरिजिनेट होता है और बाहर निकलता है, उसको कहते हैं हम पॉजिट्रॉन। क्या कहते हैं? जो पॉजिट्रॉन है दैट इज एन एंटी पार्टिकल ऑफ इलेक्ट्रॉन। इसीलिए किसी न्यूक्लियस में न्यूट्रॉन ज्यादा होते हैं दैट रिक्वायर्ड फॉर देयर स्टेबिलिटी। न्यूट्रॉन कन्वर्ट होता है किसमें? प्रोटॉन में, और यहां एक इलेक्ट्रॉन निकलता है। These positrons and electrons which are created inside the nucleus, they are called as beta particles. लेकिन ये न्यूक्लियस में जैसे ही क्रिएट होते हैं उसी वक्त ये न्यूक्लियस से बाहर जाते हैं because they have a very high energy. Now third type of जो रेडिएशन हमें आती है that are gamma rays. एक बात, जो ये अल्फा पार्टिकल्स और बीटा पार्टिकल्स है इनको पार्टिकल्स भी कहते हैं और रेज भी कहते हैं, ठीक है ना? लेकिन गामा जो है इनको हम पार्टिकल्स नहीं कहते हैं बिकॉज दे आर फोटॉन्स। गामा रेज जो है दे आर हाई एनर्जी फोटॉन्स इमिटेड व्हेन ए न्यूक्लियस रिटर्न्स टू द ग्राउंड स्टेट। जब आपका न्यूक्लियस एक्साइटेड स्टेट में होगा फिर वो ग्राउंड स्टेट में आ जाएगा, जो डिफरेंस ऑफ एनर्जी बिटवीन द टू स्टेट्स होगी वो इमिट होती है इन द फॉर्म ऑफ फोटॉन्स। उन फोटॉन्स को हम क्या कहते हैं? गामा रेज। सो दीज आर द 3 टाइप्स ऑफ इनविजिबल रेडिएशंस व्हिच आर इमिटेड ड्यूरिंग रेडियोएक्टिव डिसइंटीग्रेशन। Now next slide.
Now, discovery of radioactivity. Very important topic. Discovery of radioactivity. How this radioactivity was discovered? देखिए, ये जो बोल पांच बस ठीक जो रेडियोएक्टिविटी है, इसकी जो डिस्कवरी हुई वो एक्सीडेंटली हुई. इट्स एन एक्सीडेंटल डिस्कवरी. क्या हुआ, एक दिन हमारे पास एक फ्रंट फिजिस्ट था 1896 में. देयर वाज अ फ्रेंच फिजिस्ट हेनरी बेक्यूरियल. उसने क्या काम किया, उसने एक फोटोग्राफिक, जब वो लेबोरेटरी में एक्सपेरिमेंट कर रहा था, वहां एक फोटोग्राफिक प्लेट था. उसने उस फोटोग्राफिक प्लेट को टेबल पे रखा और उस टेबल के पास पड़ा था यूरेनियम साल्ट. यूरेनियम का साल्ट था और वो यूरेनियम साल्ट जो था, दैट यूरेनियम साल्ट that was wrapped in a black paper. यहां पर फॉर एग्जांपल ये आपका फोटोग्राफिक प्लेट था टेबल पे और यहां पर एक ब्लैक पेपर में यूरेनियम साल्ट बंद करके था. wrapped था, wrapped मींस बंद करके. तो सवेरे जब वो आया तो उसने देखा जो ये फोटोग्राफिक प्लेट है ये ब्लैक हुआ था. तो यहां पर उसने सोचा कि ये फोटोग्राफिक प्लेट क्यों ब्लैक हुआ. इसने सोचा कि जो ये ब्लैक पेपर है जिसमें यूरेनियम पड़ा है, इस यूरेनियम से कुछ इनविजिबल रेडिएशंस इमिट हो गए जिन्होंने इस फोटोग्राफिक प्लेट को ब्लैक किया, जिन्होंने इस फोटोग्राफिक प्लेट को क्या किया, कलर इसका चेंज किया. ठीक है ना, वही है. He found that a photographic plate got blackened. यहां पर ये blackened है, blackened when placed near uranium salt wrapped in a black paper. He thought that blacking the photographic plate is due to the emission of some kind of invisible radiations by what? Uranium salt. क्योंकि यूरेनियम साल्ट जो है वो है अनस्टेबल. ठीक है ना, salt that penetrate through the paper and affect the photographic plate. तो इसने देखा सवेरे जब उसने देखा कि जो फोटोग्राफिक प्लेट था उस पे कुछ ब्लैक लग रहा था, वो उस पे इफेक्ट हुआ था. तो इसने बोला कि शायद जो यूरेनियम साल्ट है इससे कुछ रेडिएशंस इमिट हो गए जो पेनिट्रेट हुए, किसमें, इस पेपर से पेनिट्रेट हुए और फिर उन्होंने इफेक्ट किया क्या, फोटोग्राफिक प्लेट. आफ्टर कपल ऑफ इयर्स दो और फिजिस्ट हमारे थे, हस्बैंड एंड वाइफ, मैरी क्यूरी एंड पेरी क्यूरी. They were doing the same experiments on radium and polonium. इन्होंने वहां देखा कि same kind of radiations जो है वो emit हो रहे हैं. These radiations were later named as Bequerial rays. क्या उनका नाम क्या था, Bequerial rays. इन्होंने क्या देखा, later on इन्होंने देखा कि जितने भी न्यूक्लियर है जिनका एटॉमिक नंबर ग्रेटर देन 82 है, वो तमाम जो है वो क्या दिखाते हैं, रेडियोएक्टिविटी. This was about the discovery of radioactivity. Okay. नीचे इसको चोरी करना है. एक्सपेरिमेंट टू इन्वेस्टिगेट टू इन्वेस्टिगेट द इलेक्ट्रिक नेचर ऑफ रेडियोएक्टिव रेडिएशंस. आज हम एक एक्सपेरिमेंट पढ़ेंगे जिससे हम इनका इलेक्ट्रिक नेचर देखेंगे. जो ये रेडियोएक्टिव रेडिएशंस आए, अल्फा रेज निकले, बीटा रेज निकले, गामा रेज निकले, इनका इलेक्ट्रिक नेचर क्या है. ये पॉजिटिवली चार्जड है, ये नेगेटिवली चार्जड है, ये न्यूट्रल है. सो दिस इज द एक्सपेरिमेंट व्हिच इज यूज्ड फॉर इन्वेस्टिगेटिंग द चार्ज ऑफ दीज रेडियोएक्टिव रेडिएशंस. ये एक्सपेरिमेंट किसने किया, ये भी हमारे अर्नेस्ट रदरफोर्ड ने किया. ही परफॉर्म्ड सो मेनी एक्सपेरिमेंट्स, ही वाज अ ग्रेट फिजिस्ट. अर्नेस्ट रदरफोर्ड ने क्या किया, ही परफॉर्म्ड एन एक्सपेरिमेंट टू इन्वेस्टिगेट अबाउट द नेचर ऑफ रेडियोएक्टिव रेडिएशंस. इन्होंने क्या किया, अर्नेस्ट रदरफोर्ड ने क्या किया, इन्होंने एक लेड ब्लॉक लिया. दिस इज द लेड बॉक्स. लेड ब्लॉक भी कहेंगे, लेड बॉक्स भी कहेंगे. इस लेड बॉक्स में इन्होंने एक होल ड्रिल किया, a small hole. So a small hole was drilled in this lead box. ये small hole इसने lead box में ड्रिल किया और इस small hole के बॉटम पे इन्होंने एक सोर्स रखा, रेडियोएक्टिव सोर्स रखा. such as उन्होंने क्या काम किया, they placed a radioactive substance such as radium. इन्होंने यहां पर रेडियोएक्टिव सब्सटेंस रखा. हम रखेंगे लेट अस सपोज देयर इज अ रेडियम. तो क्या किया अर्नेस्ट रदरफोर्ड में, they drilled a small hole in a lead box and placed a radioactive substance at the bottom of this lead box. Now चूंकि ये रेडियोएक्टिव सब्सटेंस है,
It will, in order to achieve stability, it will emit radioactive radiations. कुछ रेडिएशन जो है वो इस बॉक्स के साइड्स ने एब्जॉर्ब की, लेकिन कुछ रेडिएशन जो है वो बाहर आ गए, तो एक नैरो बीम ऑफ रेडिएशंस इस होल से बाहर आ गया, बिकॉज दिस वाज अ स्मॉल होल, सो नैरो बीम ऑफ रेडिएशंस केम आउट ऑफ दिस होल व्हिच वाज ड्रिल्ड इन अ लेड बॉक्स. अब इन्होंने क्या काम किया, जो ये नैरो बीम यहां से आया, इन्होंने यहां पर दो प्लेट्स रखे, एक पॉजिटिवली चार्ज्ड प्लेट है और दूसरा नेगेटिवली चार्ज्ड प्लेट है. इन प्लेट्स ने क्या काम किया, दीज प्लेट्स विल प्रोवाइड एन इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड इन दिस गैप. ठीक है ना. इसका मतलब है जो यहां से नैरो बीम ऑफ radioactive radiations आया, this narrow beam of radioactive radiations was subjected to an electric field and electric field or magnetic field. ठीक है ना. Provided by means of two plates placed at the sides of this narrow beam. इन्होंने क्या देखा, जो ये नैरो बीम यहां से बाहर आया, ये नैरो बीम सेपरेट हो गया into three components. एक कंपोनेंट जो हमारा है वो डिफ्लेक्ट हुआ, वो बेंड हुआ टुवर्ड्स द नेगेटिव प्लेट. इसका मतलब है उसको नेगेटिव प्लेट ने अपनी तरफ अट्रैक्ट किया. नेगेटिव प्लेट किस चार्ज को अट्रैक्ट करेगा, पॉजिटिव चार्ज को. इसका मतलब है उसको कौन सी चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज. उसको उन्होंने कहा दे वर कॉल्ड एज व्हाट, अल्फा पार्टिकल्स और अल्फा रेज. दिखा है, one component bends towards the negative plate and hence consists of positively charged particles called alpha particles. तो दूसरा जो था second component, second part जो इस बीम का था, that gets bent towards the positive plate. इसका मतलब है that will be made up of negatively charged particles and these negatively charged particles were called as beta rays. तीसरा कंपोनेंट जो है ना वो यहां डिफ्लेक्ट हुआ ना वो यहां डिफ्लेक्ट हुआ, वो सीधे चला गया. जब वो सीधे चला गया, इसका मतलब है दैट्स अ न्यूट्रॉन and that was named as they were named as what, gamma ray. इसका मतलब है ये इसीलिए डिफ्लेक्ट नहीं हुआ क्योंकि इसके पास कोई चार्ज नहीं है. whereas जो अल्फा और बीटा पार्टिकल्स थे वो डिफ्लेक्ट हो गए. अल्फा डिफ्लेक्ट हुआ towards the negative plate और बीटा डिफ्लेक्ट हुआ towards the positive plate. whereas gamma जो है वो straightly ऊपर चला गया. it was therefore these the third component goes undeflected and hence it consists of neutral photons called gamma rays. So with this experiment you are now aware how to explain the electric nature of nuclear radiations. ठीक है ना. next slide. now properties of alpha, beta, gamma rays. अब हम इनकी प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे. सिंपल, पहले हम अल्फा पार्टिकल्स की प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे या अल्फा रेज की. आपको पता है जो अल्फा पार्टिकल है, इट्स ए हीलियम न्यूक्लियस और इट्स ए डबली आयनाइज्ड हीलियम एटम कंटेनिंग 2 प्रोटॉन्स एंड 2 न्यूट्रॉन्स. चूंकि न्यूक्लियस में प्रोटॉन्स होते हैं, वही न्यूक्लियस को चार्ज देते हैं. अल्फा पार्टिकल जो है ये हीलियम न्यूक्लियस में 2 प्रोटॉन्स होते हैं, यानी हीलियम न्यूक्लियस की चार्ज जो होगी वो होगी ट्वाइस द चार्ज ऑफ प्रोटॉन. इसका मतलब है जो हमारा अल्फा पार्टिकल है इसकी चार्ज जो होती है वो होती है ट्वाइस द चार्ज ऑफ प्रोटॉन. नाउ थर्ड प्रॉपर्टी, emitted from the nucleus with velocity ranging from 10 raised to power 4 into 1.4 into 10 raised to power 7 meter per second to 2.2 into 10 raised to power 7 meter per second. आप ऐसे लिख सकते हो, they are emitted from the nucleus because they don't stay in the nucleus, they get emitted. They are emitted from the nucleus with the velocities of the order of 10 raised to power 7 meters per second. यह है तीसरी प्रॉपर्टी. चौथी तो आपने देखी, deflected by electric and magnetic fields. जो अल्फा पार्टिकल्स है, they are deflected by electric and magnetic fields, and the direction of their deflection shows that they are what? They are positively charged particles because they are deflected towards the negative plane. Low penetrance, क्योंकि अल्फा पार्टिकल जो है तीनों रेज में, बीटा पार्टिकल्स, बीटा रेज, गामा रेज और अल्फा रेज, इनमें सबसे ज्यादा मास है किसको? अल्फा. ड्यू टू लार्ज मास, जो ये अल्फा पार्टिकल्स है, दे हैव लो पेनिट्रेटिंग पावर. व्हाट डू यू मीन बाय पेनिट्रेटिंग पावर? टू पेनिट्रेट इनटू समथिंग. ठीक है ना. इनका जो पेनिट्रेशन पावर है, पेनिट्रेटिंग पावर जो है, दैट इज स्मॉल ड्यू टू देयर लार्ज मास. कितना है? लो पेनिट्रेटिंग पावर ड्यू टू देयर लार्ज मास, अबाउट 1/100 times that of beta particles.
and 1/10,000 times that of gamma rays. इतना गामा रेज से इतना कम इनका पेनिट्रेटिंग पावर है। नाउ हाई आयोनाइजेशन पावर, मैं इसके इस माथे पे छोटा पत्थर फेंकूंगा, छोटा पत्थर लगाऊंगा इसके इस पे फोरहेड पे, वो थोड़ा सा मीट निकालेगा इसके हेड से। मैं बड़ा पत्थर लगाऊंगा, वो ज्यादा इसका जो हेड है ना वहां से ज्यादा मीट उठाएगा। इसका मतलब है लार्ज मास, लार्ज द मास, लार्ज विल बी द आयोनाइजिंग पावर, है ना। पत्थर, बड़ा पत्थर जो होता है उसको मास ज्यादा है, उसका इफेक्ट ज्यादा होगा। चूंकि अल्फा पार्टिकल जो है ये तीनों रेज से मैसिव है, लिहाजा इसका आयोनाइजिंग पावर जो होगा वो होगा लार्जर। ड्यू टू लार्ज मास इस अल्फा पार्टिकल जो होता है इसको हाई आयोनाइजिंग पावर होता है। आपने पढ़ा रुदरफोर्ड स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट में जो अल्फा पार्टिकल्स है दे आर स्कैटर्ड बाय थिन मेटल फॉइल, ये भी आपने पढ़ा, दे कॉज फ्लोरोसेंस। ज्यादा स्क्रीन पे जब अल्फा पार्टिकल पड़ता है a flash of light is produced, that's called fluorescence. They cause fluorescence in substances like zinc sulfide and barium pentocyanide etc. Their range in air, range means distance traveled in the air, their range in air varies from 2.7 centimeters to 8.62 centimeters, 2.70 centimeters to 8.62 centimeters। ये डिस्टेंस जो है ये कवर कर सकते हैं अल्फा पार्टिकल, किस में, एयर में। दिस कंप्लीट्स दिस। हाँ, पहले बीटा लाओ फिर गामा लाओ, पहले बीटा नीचे, इसने गलत किया, इसने गामा पार्टिकल्स। मैंने आपको अभी बताया जो बीटा पार्टिकल्स है इनका जो है ये न्यूक्लियर ऑरिजिन है इनका, ये वो इलेक्ट्रॉन्स नहीं है जो रिवॉल्व करते हैं अराउंड द न्यूक्लियस इन व्हाट सर्कुलर ऑर्बिट्स, ये वो इलेक्ट्रॉन्स है जो न्यूक्लियस में पैदा होते हैं। कैसे पैदा होते हैं? ड्यू टू कन्वर्शन ऑफ न्यूट्रॉन इनटू प्रोटॉन। उस न्यूक्लियस में, जिस न्यूक्लियस में नंबर ऑफ न्यूट्रॉन ज्यादा होते हैं देन रिक्वायर्ड फॉर स्टेबिलिटी, ठीक है ना। तो न्यूट्रॉन किस में कन्वर्ट होता है? प्रोटॉन में, और उसमें इलेक्ट्रॉन निकलता है, या प्रोटॉन कन्वर्ट होता है न्यूट्रॉन में और वहां क्या निकलता है? पॉजिट्रॉन। तो दे आर फास्ट मूविंग इलेक्ट्रॉन्स क्रिएटेड इनसाइड द न्यूक्लियस, ठीक है ना। इनकी एनर्जी बहुत ज्यादा होती है, दे हैव अ नेगेटिव चार्ज इक्वल टू दैट ऑफ इलेक्ट्रॉन, क्योंकि दे आर फास्ट मूविंग इलेक्ट्रॉन्स, देयरफॉर चार्ज विल बी दैट ऑफ इलेक्ट्रॉन, और मास भी उतनी होगी जितने इलेक्ट्रॉन की है। इमिटेड फ्रॉम द न्यूक्लियस विद अ वेलोसिटी ऑफ द ऑर्डर ऑफ 2 into 10 raised to power 8 meters per second, that means लगभग जो इनकी वेलोसिटी होती है जब ये न्यूक्लियस से बाहर होती है, that is comparable with the velocity of light, उसके बराबर नहीं है लेकिन उसके लगभग बराबर, यानी ऑर्डर जो है that is 10 raised to power 8 meters per second. Deflected by electric and magnetic fields, ये तो पता है, and direction of deflection shows that they are negatively charged. इनका पेनिट्रेशन पावर जो होगा that will be larger than that of alpha particles. क्यों होगा larger than that of alpha particles? क्योंकि इनका मास कम है, लेकिन इनका जो आयोनाइजिंग पावर होगा वो होगा कम as that of that, the ionizing power जो है that is 1/100 times smaller than that of alpha particles. क्योंकि इनकी मास कम है तो आयोनाइजिंग पावर कम होगा। Cause ये भी फ्लोरोसेंस काज करते हैं, they cause fluorescence in ZNS and other fluorescent materials. इफेक्ट फोटोग्राफिक परेड स्ट्रांगली देन दैट ऑफ अल्फा पार्टिकल्स, ये भी करते हैं इफेक्ट, किसको? फोटोग्राफिक परेड को, लेकिन इसका जो इफेक्ट होगा दैट विल बी मोर देन दैट ऑफ अल्फा पार्टिकल्स। रेंज इन आयर इज मच मोर देन ऑफ अल्फा पार्टिकल्स, क्योंकि मास कम है अल्फा पार्टिकल्स से तो रेंज जो होगा वो इंक्रीज होगा। आगे गामा रेज, ये आपको पता है, दे आर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन व्हिच आर इमिटेड व्हेन द न्यूक्लियस रिटर्न्स फ्रॉम ground state to any of the excited states. They are electromagnetic waves having wavelength smaller than that of X-rays. इनकी wavelength जो होती है वो smaller होती है than that of X-rays. लिहाजा इनका जो energy होती है वो होगी greater than that of X-rays. Carry no charge, ये तो पता है, they are neutral. Zero rest mass. गामा रेज जो है वो रेस्ट में पैदा नहीं होती, रेस्ट में नहीं होती, वो तब ही पैदा हो जाएंगे जब न्यूक्लियस नीचे आएगा फ्रॉम एक्साइटेड स्टेट टू डाउन स्टेट। सो a gamma ray at rest never exists, ठीक है ना। a photon at rest never exists, there will be no photon at rest. photon जब भी होता है वो मोशन में होता है, वो इमिट होता है, that's the light रेस्ट में नहीं होती है। travel with speed of light, आपको पता है electromagnetic waves travel with speed of light, not deflected by electric and magnetic fields, इनको इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड डिफ्लेक्ट नहीं करते, ठीक है ना। हाई पेनिट्रेटिंग पावर, इनका पेनिट्रेटिंग पावर जो होता है वो होता है बहुत ज्यादा, क्योंकि इनकी मास बहुत कम है, 10,000 times that of alpha rays.
लो आयोनाइजिंग पावर, चूंकि इनका मास बहुत कम है तो आयोनाइजिंग पावर कम होगा. कॉज लेस फ्लोरोसेंस, इफेक्ट फोटोग्राफिक प्लेट स्ट्रांगली, दे इफेक्ट फोटोग्राफिक प्लेट स्ट्रांगली, डिफ्रैक्टेड बाय द क्रिस्टल्स. ये आपको पता है सॉलिड स्टेट फिजिक्स में जो गामा रेज है फोटॉन्स, दे आर डिफ्रैक्टेड बाय द क्रिस्टल्स. दिस कंप्लीट्स दिस. कर सकते बरोबर. लॉज ऑफ रेडियो एक्टिविटी. देखो जी, पहला लॉ जो है वो आपको पता है, रेडियो एक्टिविटी जो है इट्स ए स्पॉन्टेनियस प्रोसेस. रेडियो एक्टिविटी इज ए स्पॉन्टेनियस प्रोसेस. स्पॉन्टेनियस प्रोसेस मीन्स जो ये रेडियो एक्टिविटी है it occurs by itself. Heavy elements are less stable, therefore in order to achieve the stability what happens, these heavy elements disintegrate into metal mass elements. ठीक है ना? Now since it is a spontaneous process, therefore it is unaffected by the external factors like temperature, pressure. बाहर कितना प्रेशर होगा, बाहर टेम्परेचर कितना होगा, उस पे इस पे इफेक्ट नहीं होता है. Now सेकंड जो है, सेकंड लॉ, रेडियो एक्टिविटी जो है is a random process. Radioactivity is a random process. हम ये भी कह सकते हैं it's a law of chance. चूंकि आपका जो एलिमेंट है उस एलिमेंट में बिलियंस एटम्स है, एक ही एटम नहीं है, उसमें बिलियंस एटम्स है. यहां देखो, जो आपका रेडियोएक्टिव एलिमेंट है उसमें बिलियंस एंड बिलियंस ऑफ एटम्स होंगे. तो आपको यह पता नहीं है which of the atom would disintegrate first. तो यहां पर चांस होता है कि कौन सा एटम पहले डिसइंटीग्रेट होता है. इसीलिए हम कहते हैं जो रेडियो एक्टिविटी है ये रैंडम प्रोसेस है. That means we do not know which of the atom will disintegrate first. Whether atom number 1 disintegrates first, atom number 2 disintegrates first, atom number 3 disintegrates first. What the number of atom? We don't know the atom which disintegrates first. So therefore, this is a random process. This is the law of chance. Number third, किसी भी रेडियोएक्टिव डिके में या अल्फा पार्टिकल इमिट होता है या बीटा पार्टिकल इमिट होता है. in any radioactive decay, either an alpha particle or a beta particle is emitted, but both these particles are not emitted simultaneously means एक ही वक्त दो पार्टिकल्स नहीं निकलेंगे, या अल्फा निकलेगा या बीटा निकलेगा, दोनों एट अ टाइम नहीं निकलेंगे. In any radioactive decay, either an alpha particle or a beta particle is emitted. Both the particles are not emitted simultaneously. किसी भी रेडियोएक्टिव डिके में या अल्फा पार्टिकल इमिट होगा या क्या होगा, बीटा पार्टिकल, दोनों एट अ टाइम इमिट नहीं हो जाएंगे. फोर्थ लॉ, सपोज हमारे पास एक रेडियोएक्टिव एलिमेंट है XZA, इसका जो मास नंबर है वो है A, इसका जो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स है वो है Z. सपोज दिस रेडियोएक्टिव एलिमेंट emits by decaying an alpha particle, यानी इसको कौन सी डिके हो गई, अल्फा डिके. When a radioactive element decays by emitting what particle, alpha particle. जब एक रेडियोएक्टिव एलिमेंट डिके हो गया और इमिट कौन सा पार्टिकल हो गया, अल्फा पार्टिकल. यानी जो यहां से पार्टिकल हमारा बाहर निकला दैट इज एन अल्फा पार्टिकल. अल्फा पार्टिकल का मास नंबर क्या है, 4. ठीक है ना. एटॉमिक नंबर चार्ज नंबर क्या है, एटॉमिक नंबर क्या है, 2. इट्स अ हीलियम न्यूक्लियस. तो व्हाट हैपेंस, इसमें क्या होता है, जो आपका पेरेंट एलिमेंट है, दिस इज द पेरेंट एलिमेंट, दिस पेरेंट एलिमेंट दिस इज द पेरेंट एलिमेंट
आप ऐसे बोलेंगे when a radioactive element undergoes alpha decay, yeah, that means decays by emitting what? Alpha particle. What happens? The parent element changes into a new element. जो ये parent element है, ये change होगा किस element में? New element. Say why? And that new element is called the daughter element. That's called as what? Daughter element. Whose mass number will be less than parent by how many units? 4 units. यानी इसका mass number जो होगा वो होगा A-4 and atomic number will be less by what units? 2 units. So ये तो चौथा law है. Whenever an alpha particle, whenever a radioactive element decays by emitting an alpha particle, it changes into a new element called the daughter element, whose atomic number will be less by 2 units and mass number less by 4 units than the parent element. ठीक है ना? तीसरा, अब अगर ये हमारा रेडियोएक्टिव एलिमेंट है, सपोज इसमें बीटा डिके हो गई. बीटा डिके मींस व्हाट पार्टिकल इज इमिटेड? बीटा पार्टिकल. देखो, whenever a radioactive element decays by emitting a beta particle, बीटा पार्टिकल जो होता है वो इलेक्ट्रॉन होता है या पॉजिट्रॉन होता है? फास्ट मूविंग इलेक्ट्रॉन और फास्ट मूविंग प्रोटॉन. पॉजिट्रॉन ये कैसे इमिट होते हैं? चूंकि उन न्यूक्लियाई में या प्रोटॉन ज्यादा होते हैं या न्यूट्रॉन ज्यादा होते हैं. देन रिक्वायर्ड फॉर द स्टेबिलिटी, देयरफॉर वहां कन्वर्शन होता है न्यूट्रॉन इनटू प्रोटॉन या प्रोटॉन इनटू न्यूट्रॉन. नाउ चूंकि इलेक्ट्रॉन जो है इसका मास बहुत कम है, बहुत कम है. ठीक है ना? इसका मास बहुत कम है. इसका मतलब है जब ये बीटा डिके हो जाएगी, जब ये बीटा डिके हो जाएगी, जो आपका डॉटर एलिमेंट जो होगा उसके मास का में नेग्लिजिबल फर्क आएगा. तो इसका मतलब है उसका मास जो होगा दैट विल बी अप्रोक्सीमेटली सेम एज दैट ऑफ द पेरेंट एलिमेंट. ठीक है? हमारे पास 2 किस्म की बीटा डिके होती है. एक बीटा डिके को हम कहते हैं नेगेटिव बीटा डिके. नेगेटिव बीटा डिके कब होती है? जब प्रोटॉन कन्वर्ट होता है इनटू न्यूट्रॉन. उस वक्त हमारा इलेक्ट्रॉन निकलता है. प्रोटॉन जो है वो कन्वर्ट होता है न्यूट्रॉन में, तो वहां क्या निकलता है भाई? इलेक्ट्रॉन. ठीक है ना? इलेक्ट्रॉन जब होता है उसको हम कहते हैं नेगेटिव बीटा डिके. देखो बेटा, सपोज ये पेरेंट एलिमेंट है, इसका एटॉमिक नंबर क्या है? Z. मास नंबर क्या है? A. सपोज यहां पर हमारा बीटा माइनस डिके हो गई. बीटा माइनस डिके मतलब हो गया क्या निकल गया? इलेक्ट्रॉन. क्या निकल गया? इलेक्ट्रॉन. तो बच्चों ये इलेक्ट्रॉन निकला, तो जो आपका डॉटर एलिमेंट होगा उसका एटॉमिक नंबर जो होगा दैट विल बी Z+1, चूंकि एक नेगेटिव चार्ज बाहर हो गई. मास नंबर क्या होगा? सेम, चूंकि जो इलेक्ट्रॉन जो है इसका मास जो है दैट इज नेग्लिजिबल. ठीक है? ठीक है? when a radioactive element decays by emitting what? Negative beta particle, that's electron, what happens? The parent element changes into a daughter element whose atomic number increases by 1 unit but mass number remains same. यानी atomic number changes by 1 unit. अब यही डिके नहीं गए XZA, तो ये पॉजिटिव बीटा डिके है. पॉजिटिव बीटा डिके, यहां पर हमारा पॉजिट्रॉन बाहर आएगा. ठीक है ना? इसमें न्यूट्रॉन ज्यादा होंगे, इसमें प्रोटॉन ज्यादा होंगे. प्रोटॉन कन्वर्ट किसमें होगा? न्यूट्रॉन में, और वहां हमारा पॉजिट्रॉन आएगा. यहां पर ये पॉजिट्रॉन है, ये प्रोटॉन जो है ये कन्वर्ट हो गया इनटू न्यूट्रॉन, प्लस क्या होगा वहां पर? पॉजिट्रॉन. तब इसकी पॉजिटिव चार्ज है और इसकी पॉजिटिव चार्ज है. सॉरी, यहां पर इलेक्ट्रॉन नहीं था, यहां पर क्या था? पॉजिट्रॉन. इलेक्ट्रॉन यहां था, न्यूट्रॉन गेट्स कन्वर्टेड इनटू प्रोटॉन, निकला क्या बाहर? निकला क्या बाहर? इलेक्ट्रॉन. तो यहां देखो, यहां पर देखो, यहां पर जो डॉटर एलिमेंट होगा, चूंकि पॉजिटिव चार्ज बाहर आई, उसका एटॉमिक नंबर जो होगा दैट विल बी लेस देन द पेरेंट बाय 1, और मास नंबर जो होगा वो रहेगा सेम. ठीक है ना? हम ऐसे, अरे यहां पर पॉजिटिव चार्ज एक बाहर आई, तो Z जो है Z इंडिकेट्स पॉजिटिव चार्ज, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, तो इसका -1 हो जाएगा ना. यहां पर +1 हो जाएगा. क्यों +1? यहां पर एक नेगेटिव चार्ज बाहर चली गई. तो हम ऐसे कहेंगे, whenever a radioactive element decays by emitting a beta particle, what happens? The parent element changes into a daughter element whose
atomic number changes by 1 unit, whose atomic number changes by 1 unit, but the mass number remains same. If it is beta minus decay, the atomic number of daughter will be 1 unit greater than that of the parent. If it is beta plus decay, when the positron will come out, then in that case the atomic number of the daughter will be 1 unit less than that of the parent. Now third, अब जब एक रेडियोएक्टिव न्यूक्लियस से, रेडियोएक्टिव एलिमेंट से गामा रे बाहर आए, when a radioactive element decays by emitting a gamma ray, चूंकि गामा रेज जो होते हैं वो न्यूट्रल होते हैं, उनके पास कोई चार्ज नहीं होती है, ठीक है ना. Therefore what happens? Neither the mass nor the atomic number of the parent will change. Only the parent element will return to ground state from any of its excited state. हम ऐसे लिखेंगे, when a radioactive element decays by emitting a gamma ray, neither the mass number nor the atomic number of parent will change. Only the parent will return to the ground state from any of its excited states. उस decay को हम ऐसे लिखेंगे, XZA ये एक्साइटेड स्टेट है, तो मैंने स्टार से डिनोट किया, स्टार डिनोट्स एक्साइटेड स्टेट, ठीक है ना. यहां पर आपको गामा डिके हो गई, गामा डिके, इसका मास नंबर जो है वो वही रहेगा A, एटॉमिक नंबर जो है वो भी Z रहेगा, और खाली जो इन दो स्टेट्स के दरमियान ये है एक्साइटेड स्टेट, तो ये है ग्राउंड स्टेट. एक एक्साइटेड स्टेट है, दूसरा जो है ग्राउंड स्टेट. खाली इन दो स्टेट्स में क्या होगा, व्हाट हैपेंस, जो इन दो स्टेट्स के दरमियान डिफरेंस ऑफ एनर्जी होगा वो इमिट होगा इन द फॉर्म ऑफ गामा रे. सो व्हेनेवर a radioactive element decays by emitting a gamma ray, what happens? Neither the mass number nor the atomic number of the parent change. Why? Parent will change. Why they will not change? Because gamma rays are neutral, ठीक है ना. Only the parent element returns back to its ground state from any of its excited states. The third last law, that's very important. Suppose we have a radioactive sample here. यहां देखो, we have a radioactive sample here. Suppose we have a radioactive sample here. Suppose initially, यहां देखो, initially this radioactive element, suppose it contains 100 atoms. Suppose, that is suppose. Now, since it is a radioactive element, therefore initially in the beginning, number of active atoms present in it, what is? मैंने कितना लिया? 100. Now, चूंकि ये रेडियोएक्टिव है, ये एटम्स जो है इसमें ये डिके, दे विल बी गोइंग, ये जो एटम्स है ये डिके होते रहेंगे, तो हमें नहीं मालूम होगा कौन सा एटम पहले डिके होगा. नाउ इसका मतलब है एट टाइम t = 0 इसमें 100 एक्टिव एटम्स है, चूंकि ये रेडियोएक्टिव एलिमेंट है, इसके एटम्स जो है वो डिके होते रहेंगे. सपोज आफ्टर 5 मिनट्स इसमें जो नंबर ऑफ एक्टिव एलिमेंट्स रहे, नंबर ऑफ एक्टिव एटम्स रहे, वो रहे 60. डिके कितने हो गए? 40. ये लॉ कहता है द नंबर ऑफ एटम्स डिकेइंग पर सेकंड, ये ऐसे कहता है, नंबर ऑफ एटम्स डिकेइंग पर सेकंड, डिकेइंग पर सेकंड, जिसको हम कहते हैं रेट ऑफ डिसइंटीग्रेशन. रेट ऑफ डिसइंटीग्रेशन, रेट ऑफ डिसइंटीग्रेशन हो क्या मतलब होता है? एक सेकंड में कितने एटम्स डिके हो गए? द नंबर ऑफ रेडियोएक्टिव एटम्स डिकेइंग पर सेकंड, दैट मींस रेडियो रेट ऑफ डिसइंटीग्रेशन of a radioactive sample at any instant of time is directly proportional to the number of undecayed atoms, to the number of undecayed atoms. Undecayed उनको active भी कहते हैं. Number of undecayed atoms left in the sample, left in the sample at that instant, at that instant. क्या कहता है? किसी भी टाइम पे, किसी भी इंस्टेंट पे जो रेट ऑफ डिसइंटीग्रेशन होती है, यानी नंबर ऑफ एटम्स डिसइंटीग्रेटिंग पर सेकंड, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है उस वक्त उस सैंपल में कितने अनडिकेड एटम्स होंगे.
ठीक है ना, यानी जो यहां पर इस वक्त रेट ऑफ डिसइंटीग्रेशन होगी वो दैट विल बी प्रोपोर्शनल टू 60, बिकॉज यहां पर अनडिकेड एटम्स कितने हैं इस वक्त 60, 40 जो है वो डिके हो गए हैं। तो दिस लॉ इज कॉल्ड एज रेडियोएक्टिव डिके लॉ। व्हाट इज दिस लॉ कॉल्ड एज? रेडियोएक्टिव डिके लॉ। क्या कहता है रेडियोएक्टिव डिके लॉ? द रेट ऑफ डिसइंटीग्रेशन, या दूसरा क्या कैसे पढ़ेंगे इसको, नंबर ऑफ रेडियोएक्टिव एटम्स डिकेइंग पर सेकंड इन ए रेडियोएक्टिव सैंपल is directly proportional to the number of undecayed atoms left in the sample at that instant। इस लॉ को जो हम कहते हैं रेडियोएक्टिव डिके लॉ। कल मैं इसकी मैथमेटिकल फॉर्म पढ़ाऊंगा। दिस कंप्लीट्स टुडेस लेक्चर।